Okay, today we are going to discuss the questions of chapter 29 SC Verma, that's electric field and potential. So first questions for short answers. Let's see question number 1. Here charge on proton is this much and charge on the electron is negative of that. Does it mean that electron has this much charge less than the charge of proton? No, it is not, but both have the, we can say both have the different nature of the charge. Nobody has less or more. Nature of the charge is different, but both have got equal magnitude of charge. Is there any, next question, is there any lower limit of electric force between two particles separated by 1 centimeter? Yes, lower limit is when lowest possible force is when we take point charges as electron or proton. See, when we take proton or electron, that is the minimum possible force between them. Next one, question number 3 we see, consider two particles A and B having equal charges and placed at some distance. The particle A is slightly displaced towards B. Does the force on B increases as soon as the particle A is displaced? Does the force on the particle A increases as soon as it is displaced? Answer is no, but it is quite fast. It is lightning fast. It is at the speed of light. It is not immediate, but it is effect is transferred at the speed of light. Okay. Question number 4. Can gravitational field be added vectorially to the electric field to get the total field? Answer is no, because both have got different units. But electric force and gravitational force can be added because forces have got the same unit, that's Newton. Okay, the answer is no, they are the different units. Next one is question number 5. Why does photographic record attract dust particles just after it is cleared? Answer is yeah, because it is because of the friction it is charged, so therefore it will start dust particles due to polarization. Next one is question number 6. Does the force on the charge due to another charge depend on the charges present nearby? No. Answer is no, because force between the two charges is given by Coulomb's law, K Q1 Q2 by R square. There is a force, it is between the two charges. Third charge is not appearing in this. Question number 7. In some old texts, it is mentioned that 4 pi lines of the force originate from each unit positive charge. Comment on the statement in view of the fact that 4 pi is not the integer. In fact, it was assumed that one field line per unit solid angle will be originating. Therefore, for the closed surface, solid angle is 4 pi. Hence, lines of force are 4 pi. This is just assumption was there. One field lines will be there from one solid angle. Okay? Therefore, it comes to be 4 pi. They are imaginary lines. Okay? Can two equipotential surfaces cut each other? Answer is no. It is the property of equipotential surface. They don't intersect each other. Answer is no. Because there will be two field lines at one place, which is not possible. Okay, field will be one, that will be the vector sum of all the fields present there. Okay. Question number 9 we will see now. If the charge is placed at rest in an electric field, will its path be along a line of force? Okay. Discuss the situation when the lines of force are a straight line and when they are curved.
तो आंसर इज yes. Initially it will move along the lines of force. Then if the lines of force are straight line, it will continue to move in that direction. Otherwise, if they are curved, it will change the direction. It will follow it will tend to go in the direction of motion ड्यू टू इनर्शिया. ठीक है, तो टर्न सपोज ऐसे फील्ड लाइन्स है, यहाँ से छोड़ा ऐसे चलेगा, फील्ड लाइन्स तो कर्व हो गई लेकिन वो अपना पाथ ऐसे फॉलो करेगा, है ना. और व्हाट इज कॉल्ड second one is discuss the situation when the field lines are straight line. तो due to single point charge, field lines will be straight line, and due to pair of point charge it will be curved. Single point charge से कैसे originate होती है ऐसे, they go up to infinite. कर्व में कैसे होगा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, नहीं पेयर है तो ऐसे कर्व हो जाएंगी, है ना. दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो इस तरह से जाती हैं ऐसे, इधर वाले भी कर्व हो जाएंगे इस तरह से. दे विल बी अकॉर्डिंग टू द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट. फील्ड लाइन्स आर दो पेयर ऑफ चार्जेस से किसी भी पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम आएंगी. ये कर्व जो है ऐसे रैंडम नहीं होता है, इट इज अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम. क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर. व्हाट आर द साइन ऑफ Q1 and Q2, and if the lines are drawn in the proportion to the charges, what is the ratio of Q1 by Q2. तो देखो ये Q2 इज पॉजिटिव, यहाँ से देखो ये Q2 है, फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से बाहर ओरिजिनेट होती है, और ये Q1 है नीचे, फील्ड इसकी तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड जाती है, तो Q1 इज नेगेटिव, Q2 इज पॉजिटिव. एंड Q1 बाई Q2 देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइन्स हैं. इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो इसमें 18 है Q2 में, इसमें 6 है, तो 6 बाई 18 तो 1/3 आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11, the point charge is taken from the point A to the point B in an electric field. Does the work done by the electric field depends upon the path of the charge? Answer is no, because electric field is conservative. Conservative में path independent होता है. Question number 12. It is said that separation between the two charges forming the electric dipole should be small. Small compared to what? Small compared to the distance of the point from the midpoint of the dipole. Suppose ये dipole है -q + q, और इस पॉइंट पे हमें निकालनी है फील्ड या पोटेंशियल निकालना है, तो दैट डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट should be large as compared to dipole length, compared to the distance of the point from the center of dipole where field or potential to be determined, उसकी कंपेरिजन में. ठीक है. 12 के बाद 13th, the number of electrons in the insulator is of the same order as number of electrons in the conductor. What is then the basic difference between the conductor and insulator? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर होते हैं एज कम्पेयर टू इंसुलेटर्स. 10⁻28 29 के ऑर्डर के होते हैं पर मीटर क्यूब. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इन कंडक्टर. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दैट डिफ्रेंशिएट्स बोथ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14, when the charge comb is brought near the small pieces of paper, it attracts the pieces. Does the paper becomes charged when the comb is brought near to it? No, it appears to be charged, but it is in fact remains neutral and get polarized. Polarized में क्या होता है, ऐसे सेपरेट हो जाते हैं. सपोज ये हमने कॉम लाया ऐसे, ठीक है, पेपर पीसेज ऐसे पोलराइज हो जाएंगे, उसका निगेटिव ऊपर पॉजिटिव हो जाए. सपोज कॉम को हमने पॉजिटिव चार्ज करा लिया, पोलराइजेशन की वजह से
पेपर पीसेस की अपोजिट चार्ज कॉम की तरफ आ जाते हैं, वो दे गेट अट्रैक्टेड, बट पेपर पीस रिमेन्स न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे पोलराइज हो जाता है पेपर पीस, माइनस प्लस, अगर हमने प्लस वाली बॉडी ऊपर से पास में लाए, अगर माइनस नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाए पेपर पीस ऐसे प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा, अट्रैक्ट होता है फिर पोलराइजेशन की वजह से। गॉट इट? दिस इज योर क्वेश्चन, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1। ठीक है, तो फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड द फिगर सजेस्ट। देखो यहाँ पर फील्ड लाइंस पास में है तो मोर होगी फील्ड, यहाँ भी पास में, और बी पर दूर पे फील्ड लाइन देखो इतना, फील्ड लाइन एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, तो फील्ड लाइन दूर होती है तो फील्ड वीक होती है। ए पर और बी पर इक्वल होगा, गैप देखो इक्वल है, और ए एंड सी पर इक्वल होगा, और बी पर कम होगी फील्ड लाइन। दैट्स व्हाट इज द आंसर। ठीक, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है, इफ फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड field will be strong there, field lines are apart, field will be weak there. So these are the properties. Next question जो है, when the separation between two charges is increased, electric potential energy of the charges may increase or decrease depending upon the nature of charges। दोनों पॉजिटिव हैं तो कम हो जाएंगी, दोनों नेगेटिव हैं तभी भी कम हो जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बढ़ जाती है ना। लेट्स सी, डिक्रीजेस, सॉरी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस, ये फार्मूला होता है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में क्यों बढ़ती है, बिकॉज बाहर सामने माइनस आ जाएगा और ये वाली जो है बढ़ाने से कम होती, तो मैग्नीट्यूड कम आता है, और नेगेटिव में अगर मैग्नीट्यूड कम होता चला जा रहा तो वो बढ़ती जा रही, जीरो विल बी मैक्सिमम। Got it? Question number 3. If positive charge is shifted from low potential region to the high potential region, electric potential energy जो है इंक्रीज होगी। देखो पोटेंशियल का एक फार्मूला ये भी होता है पोटेंशियल एनर्जी का, Q इंटू वी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो U बढ़ जाएगा, है ना। अगर हमने क्या किया, लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल में गए, वी की वैल्यू और हाई हो गई तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट ए एंड बी। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज स्टडीड वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी, देन पोटेंशियल, ये ऑप्शन है डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। देखो कैसे, सपोज हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव लिया ये भी पॉजिटिव लिया, इसके आसपास रहेंगे तो इसका पोटेंशियल बहुत हाई रहता है, ऐसे इस फार्मूले से इसका भी रहेगा यहाँ पर, तो वेरी क्लोज टू द इन्फाइनाइट होगा, फिर ऐसे ग्राफ आता है। फिर जब हम बीच में पहुँच जाते हैं तो दोनों का जो है आर बढ़ जाता है, तो दोनों पोटेंशियल कम हो जाते हैं, तो मिड पॉइंट पे कम हो जाएगा, ऐड करना है ना V1 प्लस V2। उसके बाद फिर इधर गए तो इसका डोमिनेशन शुरू हो जाएगा, इसकी वैल्यू हाई होती जाएगी, इसकी थोड़ी कम होगी बट इसकी ज़्यादा होती हाई, तो इसके आसपास आ जाते तो फिर से इन्फाइनाइट टच नहीं करेगा, फिर से इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो दैट्स हाउ इट चेंजेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलॉन्ग द पॉजिटिव x axis, small circle is drawn with the centers at the origin cutting the axes at point A B C D। A के जो है कोऑर्डिनेट्स ये हैं, x एक्सिस पे कट कर रहा है, ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, C जो है नेगेटिव x एक्सिस पे कट कर रहा है और ये नेगेटिव y पे कर रहा है। तो आउट ऑफ दीज पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल द पोटेंशियल इज मिनिमम। तो देखो पहले तो सर्कल ड्रा कर लो ऐसे, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, ऐसा फार्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर. द माइनस साइन इंडिकेट पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो यहाँ पर सबसे कम होगा तो ए एट ए. ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, सी पर होगा, है ना. और इधर से ज़्यादा ज़्यादा कम हो जाएगा, कम होता जाएगा. और बी एंड डी पर इक्वल होगा ना, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो बी एंड डी पर इक्वल होगा. नथिंग इज मेंशन. यूनिफॉर्म फील्ड में एक की पोटेंशियल सरफेस ऐसे बनती है, तो एक ही पोटेंशियल सरफेस पर होंगे ये दोनों पॉइंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 6th, इफ द बॉडी इज चार्ज बाय द रबिंग its weight may increase or decrease because depending upon how it is charged. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, है ना. तो ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू और आउट ऑफ द बॉडी, इनटू आ गए मतलब बॉडी अगर निगेटिव हो गई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसका मास बढ़ जाएगा. और अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, है ना, तो उसका मास कम हो जाएगा. Right. 7th, an electric dipole is placed in the uniform electric field. The net electric force on the dipole is always zero. यूनिफॉर्म फील्ड है ना, यूनिफॉर्म फील्ड में ऑलवेज जीरो है. देखो कैसे, एफ नेट विल बी क्यू ई माइनस क्यू ई, है ना. एक डायपोल पे एक चार्ज निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है. सपोज ऐसे है डायपोल, ये माइनस क्यू ही है, ये प्लस क्यू है, फील्ड इधर है, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर लगेगा. एंगल पे भी है तभी भी ऐसे फोर्स लगेंगे अगर फील्ड ऐसे है, नेगेटिव वाला इधर नेगेटिव का, तो इक्वल एंड अपोजिट है ना, यूनिफॉर्म फील्ड है ना. तो नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, नेट टॉर्क विल नॉट बी ज़ीरो, है ना. 7th. 8th देखते हैं. Consider the situation of figure. The work done in taking a point charge from P to A is WA from P to B, है ना. यहाँ से लेके आ रहे, यहाँ पर WA, यहाँ पे लेके आएंगे WB, यहाँ पे लेके आएंगे WC. तो वर्क डन किस में ज़्यादा होगा, तो वर्क डन जो है सभी में इक्वल होगा. क्यों, देखो इधर, सिंस वर्क डन इज work done by external source is equal to Q into V2 माइनस V1. डेफिनीशन है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनीशन क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना. तो ए बी सी पोटेंशियल सब पे सेम है. देखो V2 एंड V1, यहाँ पर सबका पोटेंशियल V1 था और V2 यहाँ पे रहेगा, इक्वी डिस्टेंट है इस चार्ज से, सेम पोटेंशियल रहेगा, तो इसीलिए तुम्हारा सेम आएगा आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट वन देखो, थोड़ा बड़ा करते हैं इसका. पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग द सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज Q. द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इज in one complete revolution. तो work done will be zero because that इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स रहेंगे फिर से, है ना. ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड से एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेट मी जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन. पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग द फील्ड सर्कल इन द फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज Q, है ना. तो ठीक, कंजर्वेटिव वाला पॉइंट नहीं लिखना क्योंकि वो एक वर्क डन. इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ. लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अदर वे. तो देखो क्यू रोटेट कर रहे हैं इन द सर्कल, ये प्लस क्यू रखा हुआ है. देखो ओके, इसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करें. ये चार्ज है, ठीक है. तो अभी इसका जो है, जो कैपिटल Q है, देखो यहाँ पर
पॉइंट चार्ज को रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये चार्ज यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज को किया ऐसे, यहाँ पे आएंगे तो ऐसे आएंगे। तो फील्ड लाइंस कैसी होती है? ऐसे आउटवर्ड होती फील्ड लाइंस यहाँ से, ठीक है। तो 90 डिग्री पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट, हमेशा फोर्स आउटवर्ड रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है और फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल रहेगा, देयरफॉर वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है। क्लियर? लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चन वंस मोर। Point charge Q is rotated along the circle in the electric field generated by another point charge Q. The work done by the electric field on the rotating charge in one complete revolution is zero. Not only one complete revolution, half of part of the revolution में भी यही आने वाला। Electric field is always radially outward. ये displacement है, very small displacement ले लेंगे, ठीक है। देयरफॉर इट्स जीरो, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 2 पे चलते हैं। मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो, है ना। टोटल चार्ज जो है इट इज़ जीरो, ए ऑप्शन है उसका। जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं यूनिवर्स में, नेट चार्ज इन द यूनिवर्स इज जीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट चार्ज इज brought in the electric field at nearby point। देखो ऐसे समझ लो, यहाँ पे डायग्राम से समझो। सपोज ये फील्ड है, यहाँ पे हम प्लस चार्ज लेके आए, ये फील्ड किसी और सोर्स की है ना, प्लस चार्ज लेके आ गए हम यहाँ पर। तो फील्ड कहाँ पे पूछा? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट नियर बाई पॉइंट, हाँ ठीक है। इस वाले पॉइंट पे देखो ऑलरेडी ये फील्ड इधर है, इसकी भी इधर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है नहीं। और इस वाले पॉइंट में देखो ये फील्ड इधर है, इसकी इधर आएगी तो कम हो जाएगी, है ना। यहाँ पे देखो ये फील्ड इधर है, ये इधर, यहाँ भी बढ़ जाएगी। ऐसे एंगल पे डिपेंड करता है, वेक्टर सम हो जाएगी ना। तो मिड डिक्रीज कहाँ गए? A point charge is brought in the electric field. Electric field at nearby points may increase if charge is positive and may decrease if charge is negative. इनफैक्ट दोनों में ही इफेक्ट हो रहा है। नेगेटिव चार्ज रखेंगे तभी भी नियर बाई पॉइंट्स पर, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, है ना। पॉइंट किधर ले रहे हैं, है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। बट दोनों में ही सेम इफेक्ट हो रहा है। नियर बाई पॉइंट में उन्होंने बोला नहीं किधर है। नेगेटिव चार्ज होगा तो एरोज जो है इनवर्ड आएंगे, इनवर्ड भी आएंगे। देखो सपोज नेगेटिव चार्ज ऐसे तो एरोज इधर आएंगे, इधर वाले पॉइंट पे फील्ड जो है बढ़ेगी, इधर वाले पे कम होगी, है ना। एनीवे वेक्टर सम करके देखो वहाँ पर, है ना, कि नियर बाई पॉइंट पे वेक्टर सम करो, इट में इंक्रीज डिक्रीज, है ना, लाइक दैट। बट कंडीशंस आर टू बी क्रॉस चेक्ड, है ना, कि वाई इट इज दे हैव रिटन पॉजिटिव नेगेटिव। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट आर ई एंड वी रेस्पेक्टिवली। इफ ई इज इक्वल टू 0, वी मस्ट बी 0। तो लेट्स सी फर्स्ट सिचुएशन। देखो यहाँ पे हमने दो चार्जेस ले लिए, तो बीच में फील्ड 0 होगी क्योंकि एक किधर आएगी एक किधर आएगी। तो फील्ड 0 है, v इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो a इज़ रॉन्ग, मस्ट बी 0 है ना। ऐसा लिखा कि मस्ट बी 0, ऐसा नहीं है, v वहाँ पे 0 नहीं है, v विल बी एडेड अप, दोनों का, दोनों प्लस है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। v इज़ 0, e मस्ट बी 0। तो v 0, देखो अभी हमने एक प्लस लिया एक माइनस लिया, तो यहाँ पे v 0 हो जाएगा v1 प्लस v2 से। लेकिन फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में आएगी, इस तरफ ही दोनों की, तो फील्ड इज़ नॉट 0,
तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ई इज नॉट इक्वल टू 0 वी कैनॉट बी 0। तो देखते हैं ई इज नॉट इक्वल टू 0। देखो एक ये 4Q चार्ज ले लिया हमने और ये यहाँ पे क्यों लिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो, अंदर जो पॉइंट होंगे वहाँ पे फील्ड 0 नहीं होती क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में होती। तो ई तो 0 नहीं है, बट एक पॉइंट यहाँ पर अंदर एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर वी 0 होता है। तो ई इज़ नॉट 0 बट वी इज़ 0। इन्होंने क्या लिखा है, वी कैन नॉट बी 0। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इफ वी इज़ नॉट इक्वल टू 0 ई कैन नॉट बी 0। तो फर्स्ट पॉइंट पे वापस आते हैं, यहाँ पे वी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो उन्होंने लिखा है ई कैन नॉट बी 0 बट ई 0 है यहाँ पर। तो फोर्थ भी रॉन्ग होगा। ए एंड डी का एक्सप्लेनेशन इससे कर लो, बी का इससे, सी का इससे। और भी सिचुएशन ले सकते हैं। शेल का देखते हैं, जैसे शेल होता है ना, यहाँ पर देखो ई फील्ड रहती है, अंदर ई 0 रहता है, वी नॉन 0 रहता है ना। तो उससे भी हम कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ई इनसाइड इज 0, वी इज़ नॉट 0, है ना। जैसे ये इसको ई 0 है तो वी नॉट 0, वी नॉन 0, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, है ना। और वी नॉन 0 होता है शेल के अंदर, तो ई कैन बी, यहाँ पे लिखा है ई कैन नॉट बी 0, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को शेल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 volt to 80 volt as one moves on x axis from -1 centimeter to +1 centimeter the electric field at the origin। तो वेद वाले फार्मूले से निकालते हैं इसको। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी, तो ये से 20 आ जाएगी, है ना। तो ऐसे अगर फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस है तो 20 आ जाएगी, बट अगर फील्ड ऐसे है देखो, तब हमें कंपोनेंट लेना पड़ता है इसका, डी का अलॉन्ग द, ये जो डी डिस्टेंस है ना, इसका कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा, या फील्ड का कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी कॉस 60, सपोज 60 डिग्री एंगल ले लिया हमने, थोड़ी देर के लिए 60 एज्यूम कर लिया, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 40 आ जाएगा, है ना। कॉस 60 विल बी 1/2। तो यहाँ पर देखो मे बी इक्वल टू 20, मस्ट भी नहीं बोल सकते, मे बी इक्वल टू 20, मे बी ग्रेटर देन 20, ठीक है। बी एंड सी, बी एंड सी, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हुए, which are the following quantities depends on the choice of zero potential or zero potential energy। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करती है, इनफाइनाइट पे लेते जनरली, बट जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो नहीं डिपेंड करेगा। इनफाइनाइट पे 0 है और बीच नियर बाई 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे उतना ही आएगा। जब ओरिजिन पे 0 लिया तभी भी उतना ही आता है ना। तो जैसे हम ग्राउंड में 0 लेवल ले लेते, कभी कभी ग्रेविटेशन में देखा, कभी ग्राउंड में 0 लेवल लेते, कभी हाइट पे 0 लेवल ले लेते। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिपेंड नहीं करता, उस पर डिफरेंस डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो बी एंड डी। पोटेंशियल एनर्जी, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये सही है। और चेंज, ये वाला सॉरी डी सी नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज मतलब डिफरेंस हो गया, ओके। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं।
ठीक है, explanation I have given you. Next one is electric dipole is placed in the electric field generated by the point charge. उसमें हमें ऑप्शन निकालने हैं. तो net electric force on the dipole must be 0, net electric force on the dipole may be 0, torque on the dipole due to electric field must be 0, है ना, torque on the dipole due to the field may be 0. तो एक एक करके चेक करते देखो. नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी 0. देखो सपोज एक यहाँ पे प्लस ले लिया हमने, यहाँ पे माइनस दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, तो इसमें ऐसे अट्रैक्ट होंगे और ये इधर भागेगा. तो दोनों के कंपोनेंट देखो, ये पूरा जो है अपोजिट नहीं है, ऐसा नहीं है, तब तो ज़ीरो हो जाएगा, बट इसके कंपोनेंट बचेंगे कुछ ना कुछ, है ना. तो ये कैंसलिंग इफेक्ट नहीं आएगा इसमें. तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द मस्ट बी 0, ये रॉन्ग हो गया. नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल में भी 0 नहीं हो रहा बिल्कुल, क्योंकि ये कंपोनेंट्स जो है, जैसे ये वाला इधर कंपोनेंट है, ये कैंसिल कर देगा, बट इसका जो ये वाला बच जाएगा, इधर ये वाला कंपोनेंट, इसके जो ये वाला कंपोनेंट है वो बच जाएगा. ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फोर्स मस्ट बी 0. तो मस्ट बी 0 मतलब जो है इसमें नहीं है 0, लास्ट वाले में देखो टॉर्क इसमें लगेगा, है ना. टॉर्क यहाँ पर जो है ये इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये घुमा, इसका ये कंपोनेंट ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा इसको, ऐसे दोनों. ठीक है, मस्ट बी 0 तो नहीं है, बट मे बी 0 है क्या. टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी 0. यहाँ पे अगर सपोज इन लाइन है वो, तभी निगेटिव पे फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव इधर, तो दोनों फोर्स एक ही लाइन में जब हो जाते हैं तब 0 हो जाता है टॉर्क, बिकॉज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है 0 हो जाती है. इस केस में 0 है, तो ये वाला पॉसिबल है. ठीक है, मे बी 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड. तो उनके फोर्स, लेट्स सी ऑप्शन. द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल. तो पहले तो फोर्स की बात करें, एफ इक्वल टू क्यू ही होता है ना, तो क्यू सेम है दोनों पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, ई भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड जो है इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल. इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम में इक्वल नहीं है, बिकॉज एक में अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, है ना. सपोज फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जाता है, प्रोटॉन इधर जाता है. एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होंगे, बिकॉज इसको मास से डिवाइड करना पड़ेगा. ए इज इक्वल टू एफ अपॉन मास. फोर्सेज जब इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मास अनइक्वल है, तो एक्सेलरेशन भी अनइक्वल हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इन्होंने क्या दिया हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रीजन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, टेकिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी 0, द तो हमें निकालना क्या. इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन. टेकिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी 0. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही कमेंट करना है हमें. इनफैक्ट ओरिजिन पे 0 है, तो बाकी जगह कैसा ऐसा है. ठीक है, तो ई इज़ गिवन प्लस दिया हुआ है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमेशा हमें एक ही फार्मूले से स्टार्ट करना पड़ता है. डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, है ना. डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर जो है सेम डायरेक्शन में आएंगे, है ना. दिया है उसमें हमें ये नहीं दिया है कि भाई एंगल पे है, तो ये cos 0. ओके, इसको हम इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों तरफ. ठीक है, इसको हम माइनस ई डी आर कॉस 0. ठीक है, अभी लिमिट लगा दो.
ओके, थोड़ा सा इधर आ जाओ। cos 0 इज 1, ठीक है। तो एट ओरिजिन डी आर जो है पोजीशन रिप्रेजेंट के, ओरिजिन पे 0 है, आर डिस्टेंस पर v है, तो ये v आ जाएगा माइनस ई की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पर, के आर डी आर, ठीक है। के बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर बाई 2 0 टू आर, ठीक है। तो माइनस के आर स्क्वायर बाई 2, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, माइनस चला जाएगा उसमें कांस्टेंट में है ना, के एन 2 भी कांस्टेंट में चला जाएगा, तो सी ऑप्शन है, ठीक है। वैसे तो वो 1/r आता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1/r स्क्वायर होती है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूले से हम निकाल लेंगे। और क्या बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो दैट्स ओके। इसमें ये भी ऑप्शन है, इट इंक्रीजेज एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही, माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऊपर है ना आर स्क्वायर, नीचे होता तो सही हो सकता था ना, तो डिक्रीज होती जा रही, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज ओके। थैंक यू वेरी मच।